Let's start. This is May June 2025, paper 1, variant 1, 1 hour 15 minutes. The paper. Let's start. You have some data points in the starting. Okay. Which quantity is a vector? प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी है? नो. टेम्परेचर वेक्टर क्वांटिटी है? नो. वेट इज फॉर श्योर अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज वेट इज अ फोर्स. All types of forces are vector quantities. Always remember that, bacha. Always remember vector quantities are all types of forces. Four students A, B, C, D have completed an experiment to determine the acceleration of free fall G. Okay. बेटा एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल की वैल्यू क्या होती है? 9.81 ms minus 2. Okay. Each student repeated the experiment 3 times. Okay. हर स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट को 3 times रिपीट किया. Which set of results shows high precision and low accuracy? बच्चे प्रिसिशन का मतलब क्या होता था? प्रिसिशन का मतलब क्या होता था? वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर. वैल्यूज क्या है? क्लोज टू ईच अदर. एक्यूरेसी का क्या मतलब होता था बेटे? एक्यूरेसी वाज values are close to actual value. Now, first of all, we need high precision. हमारी वैल्यूज एक दूसरे से क्लोज होनी चाहिए. ऑप्शन ए तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा. 7.2, 9.4 एंड 8.3 आर नॉट क्लोज टू ईच अदर. वैल्यू शुड बी क्लोज टू ईच अदर. बी देखो 9.5, 9.8, 10.2. Probably, but not that close. C और D को देखो. C and D are actually very close to each other. 9.8, 9.8, 9.9. Yeah, this is close. High precision. D is also very close to each other. 10.1, 10.2, 10.1. ठीक है. हाई प्रेसिशन ये दोनों वैल्यूज हैं C और D. बट इनमें से लो एक्यूरेसी किसकी है? वी नीड अ लो एक्यूरेसी एज वेल. लो एक्यूरेसी का मतलब क्या है? द वैल्यूज आर नॉट क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू. हाई एक्यूरेसी का मतलब क्या होगा? वैल्यूज विल बी क्लोज टू 9.8. That is in C. We want low accuracy. In part D, the values are not close to 10.8. D is your answer. This is low accurate and high precision. Easy peasy, lemon squeezy. बताओ ये चीज clear है या नहीं? The diameter of a ball is measured as 5.26 plus minus 0.02 centimeter. What is the absolute uncertainty in the volume of the ball? अच्छा मुझे बताओ सारे, जरा जरा थोड़ा सा अकल देखो. मैंने कहा था ना एएस फिजिक्स में अकल बहुत जरूरी है. बॉल इज व्हाट? बॉल इज अ टाइप ऑफ स्फीयर. ओके. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यूब. How will you calculate the absolute uncertainty in the volume of the sphere? You have to calculate delta V, that is the absolute uncertainty in volume. Okay. Can you realize you are given the diameter of the ball here? You cannot utilize this formula. हम क्या करेंगे? हमें पता है radius is equals to diameter over 2. Let's substitute it here. Volume is equals to 4/3 pi into diameter over 2 का cube. What will your volume का formula become? Volume is equals to 4/3 pi into diameter cube divided by 8. This becomes 1. This becomes 2. क्या आंसर आ जाएगा? Volume is equals to pi d cube divided by 6. ये आ गया आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला. You have to calculate the absolute uncertainty in the volume of the ball. आपने वॉल्यूम ऑफ द बॉल में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है, डेल्टा वी निकालना है. हाउ विल यू डू दैट? बहुत इजी. You will say volume is equals to pi d cube over 6. First of all, let's calculate the actual value of the volume. Diameter की वैल्यू क्या है? 5.26. Volume is equals to pi into 5.26 cube divided by 6. निकाल लो इधर क्या आता है? Pi into 5.26 का cube divided by 6. Volume comes out to be what? 76.2 centimeter cube. अब आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम निकालनी है. हाउ विल यू डू दैट? अगेन एग्जामिन दिस फॉर्मूला. वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई डी क्यूब ओवर 6.
I can replace this volume by what? Fractional uncertainty of volume is equals to what? Fractional uncertainty of diameter. And since diameter की power 3 है, fractional uncertainty of diameter भी 3 से multiply हो जाएगी. Lastly, ये pi over 6 क्या है? Constant, hence it gets ignored in the calculations of uncertainty. Simple. Now you have to calculate this small little thing known as the absolute uncertainty in volume. How will you do that? Absolute uncertainty in volume divided by the actual value of volume, that is 76.2, is equals to 3 into the absolute uncertainty of diameter, that is 0.02, divided by the actual value of diameter 5.26. इसको right side पे ले जाओ. Absolute uncertainty in volume क्या हो जाएगा? 76.2 into 3 into 0.02 divided by 5.26. Calculate करो बच्चों, क्या आता है जरा. 0.02, 5.26 into 3 into 76.2. This comes out to be 0.87 cm cube. B is your answer. Is this clear? Sorry, मुझसे पहले गलती हो गई थी. Is this clear to everyone? ठीक है. All good. Rosa, is it clear? Wajeha, is it clear? Omar, is it clear? Aska, is it clear? आगे बढ़े. कोई मसला यहाँ पे? परफेक्ट है. बहुत बेसिक था ये सवाल. अच्छा जी. Two vectors x and y are shown. What are the directions of x plus y and x minus y? अच्छा, हमने दो resultant vectors निकालने. First of all, let's calculate x plus y. This is x. If you add y to it like this, चलो y को orange से label कर देते हैं like this. This is your y. What will be your resultant vector? Can you realize this is your head, this is your tail, head to tail rule is being satisfied. The resultant vector will be somewhat like this. ऐसा कौन सा ऑप्शन है? A and B. C और D cancel out हो गए. Now let's look at x minus y. अच्छा जी, x minus y होगा तो किस तरह का resultant vector बनेगा? Let's see. This is x. How will minus y look? बेटा माइनस वाई कंप्लीटली फ्लिप हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा. अगर ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रहा है, माइनस वाई ऊपर की तरफ आ जाएगा. समवॉट लाइक दिस. इजी. नाउ यू कैन नॉट डायरेक्टली मार्क द रिजल्टेंट वेक्टर. बेटा डायरेक्टली रिजल्टेंट वेक्टर क्यों नहीं मार्क कर सकते सर? क्योंकि ये देखो, हेड ऑफ एक्स इज कनेक्टेड विद द हेड ऑफ नेगेटिव वाई. हेड टू टेल रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा. नेगेटिव वाई को नीचे ले आओ. Somewhat like this. Can you now realize that the head of one vector is connected to the tail of the other vector? Head to tail rule is satisfied. अब आप mark कर दो resultant. Somewhat like this. B is your answer. Easy peasy lemon squeezy. Clear है? बहुत easy है ना? This comes out to be your answer B. आगे बढ़ते हैं. A ball is projected vertically downwards with an initial velocity of 20. अच्छा, एक ball है जिसकी initial velocity 20 meters per second है. Air resistance is negligible. बेटा जब भी air resistance negligible होती है, your acceleration becomes what? 9.81 ms minus 2. What is the displacement from its initial position of the ball after a time of 1.5 seconds? Time आपके पास आ गया, initial speed आ गई, acceleration आ गई. You have to calculate the displacement. How will you do that? Let's write it. Let's write it here. Your initial speed is 20. Your acceleration is 9.81 ms minus 2. Speed is ms minus 1. Time is 1.5 seconds. You have to calculate s. How will you do that? We can apply s is equals to ut plus half at square. What is u? 20. What is time? 1.5 plus half into acceleration 9.81 into time ka square 1.5 square. Let's calculate this answer. 20 into 1.5 plus 0.5 into 9.81 into 1.5 ka whole square. This comes out to be what? The displacement is 41 meters. D is your answer. Simple, nothing complicated here. Let's further move ahead. A surveyor emits a pulse of light.
The light is reflected from a wall 150 meters away. What is the total time for the pulse to travel from the device to the wall and then back to the device? So basically, देखो, this is a pulse of light. What is the speed of light? 3 into 10 raised to the power of 8 meters per second. Okay. So basically, let's say you have a light or a lamp here. This is a wall. दोनों के बीच में distance क्या है बेटे? 150 meters. You have to calculate the time taken for the pulse to travel from the device to the wall and then return back to the device. Total distance क्या हो गया? What is total distance? 150 plus 150, that is equals to 300 meters. What is the speed? 3 into 10 raised to the power of 8. Can you calculate the time? Yes. Time किस तरह निकालोगे? Speed is equals to distance over time. You have to calculate time. Time is equals to distance over speed. What is the total distance? 300. What is the total speed? 3 into 10 raised to the power of 8. Can you calculate the answer by 300 divided by 3 into 10 raised to the power of 8? This gives you a value of 1 into 10 raised to the power of minus 6 seconds. 10 raised to the power of minus 6 can be replaced by what? Can be replaced by a sign of micro. 1 microsecond is your answer. D is your answer. Easy peasy, lemon squeezy. आगे बढ़. Okay. Now, let's further move ahead. Okay. Which equation of uniformly accelerated motion can be derived using only the gradient of velocity time graph? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट लेके कौन सी इक्वेशन ड्राइव की जा सकती है? डू यू रिमेम्बर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ, let's say this is let's say this is let's say if you have this as your velocity time graph or this as your velocity time graph, the gradient of velocity time graph is equals to acceleration, है ना? ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके इक्वल होती है? Acceleration. Now let's take 2 points here. Let's say this is your initial velocity time t1. Let's say this is your final velocity time t2. So how will you calculate the gradient? V minus u t2 minus t1 is equals to acceleration. This t2 minus t1 can be replaced by time. V minus u divided by time is equals to acceleration. Which equation are we heading towards? V minus u is equals to at. V is equals to u plus at. This is your equation C. C can be derived using only the gradient of velocity time graph. Let's further move ahead. An object is projected horizontally from a table at time t is equals to 0. The object falls in a uniform gravitational field. Air resistance is negligible. Okay. ग्राफ पी क्यू आर आर वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स. ओके, पी क्यू आर हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स. Which graph represents the horizontal and vertical components of the object? अच्छा, बेटा हमेशा याद रखो जब भी आप ये कौन सा मोशन हो रहा है. लेट्स से यू हैव अ टेबल लाइक दिस. You are projecting a ball horizontally. This is what? Half projectile motion. Whenever you are projecting a ball only horizontally, which type of motion are you performing? Half projectile motion. Half projectile motion perform कर रहे हो बेटा, आपकी horizontal component of velocity will remain what? Horizontal component of velocity will remain constant or same. Horizontal component कौन सा हो जाएगा? Q. C and D get cancelled out. Okay. अब vertical component कौन सा हो जाएगा सर? बेटा क्या आप रियलाइज कर सकते हो एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल. तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 9.81 ms minus 2. And whenever you are projecting something horizontally, the initial vertical velocity is 0.
So can you do something like this? V is equals to u plus 80 for the vertical direction. U 0 है. V is equals to 8. Acceleration आपकी constant है. तो आपकी straight line graph बन जाएगी. P will be your answer. A is your answer. आई बात समझ में? यस सर. दिस वाज अ थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन. ये बात समझ आएगी? इज दिस क्लियर? वजह रोजा उमर. बच्चों ये समझ आइए. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये पता चल गया कि आपकी बॉल हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट हो रही है. दैट मींस दिस इज अ हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन. किसी भी तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन हो, आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है विद टाइम. तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का ग्राफ निकालना तो इजी था. क्यों होगा? अब वर्टिकल वेलोसिटी पे आ जाओ. In half projectile motion, the initial vertical velocity is zero. And since here resistance is negligible in the vertical direction, you have an acceleration of 9.81. U 0 हो गया. V is equals to 80 हो गया. So you can draw a direct proportionality का graph like this. A is your answer. What is always conserved in elastic collision? बेटा elastic collisions में kinetic energy total हमेशा conserve रहती थी. तो A और B में से कोई ना कोई option होगा. C and D will get cancelled out. Okay. What else? आपकी total velocity conserve रहती थी? No. Kinetic energy total conserve रहती थी. Total velocity conserve रहना is not important. B is your answer. Easy peasy lemon squeezy. Always remember about elastic collisions. अच्छा जी, अब ये देखो. A firework travels vertically upwards in air. Gases are pushed vertically downward from the fireworks. Okay, fireworks की जो gases हैं वो downward आ रही हैं. It is moving upward. Several forces that act on the firework and gases are shown. अच्छा जी, एक thrust की force है, force on gases है, weight downward है, air resistance downward है. Which forces are a Newton's third law pair? कौन सी forces जो है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ की पेयर है? ओके. एयर रेजिस्टेंस एंड द फोर्स ऑन गैसेस. नो, ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे. दिस कैन नॉट. न्यूटन्स थर्ड लॉ का जो पेयर होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन वाली फोर्सेस होंगी. तो एयर रेजिस्टेंस एंड थ्रस्ट. नो. The force on gases and thrust, this could be an answer. Why? Why could force on gases and thrust be an answer? Why? देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ की जो फोर्सेस होती है ना उनकी तीन कंडीशंस होती हैं. इफ यू वांट टू फोर्सेस टू बी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, there should be three conditions that are satisfied. They must be equal, they must be opposite, and they must act on different objects. They must act on different objects. ऑप्शन ए में क्या मसला था? एयर रेजिस्टेंस एंड फोर्स ऑन गैसेस दोनों डाउनवर्ड एक्ट करेंगे. कैंसिल कर दो. ऑप्शन बी में क्या मसला था? एयर रेजिस्टेंस एंड थ्रस्ट दोनों रॉकेट पे एक्ट करेंगे. कैंसिल आउट कर दो. ऑप्शन सी इज करेक्ट. व्हाई? Because the force on gases is obviously acting on gases, it is also acting downward. और thrust का act कर रही है on the rocket and it is acting upward. It is satisfying Newton's third law का pair C is your answer. अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? Examine carefully. देखो क्या लिखा हुआ है. Two blocks K and L slide towards each other along a horizontal frictionless surface. That means there is no friction. The diagram shows the momentum of two blocks just before. Momentum of two blocks given है just before they collide. During the collision, they are in contact with each other for a time of 0.08 seconds. ठीक है. After the collision, the blocks separate and block L moves along its original path with a momentum of 0.12. तो आफ्टर कोलिजन की हम डायग्राम बना लेते हैं. लेट्स से दिस इज के जिसका मोमेंटम हमें नहीं पता आफ्टर कोलिजन. लेट्स से दिस इज एल. दिस इज मूविंग विद अ मोमेंटम ऑफ 0.12 kg/ms minus 1. You have to calculate the average force. Force किस तरह से आती है? Change in momentum over change in time. Now let's consider the right side as positive, the left side as negative. Change in momentum बेटा किस तरह निकालोगे? Final momentum minus initial momentum divided by change in time. What is the final momentum? 0.12. What is the initial momentum? Negative 0.46. Why? Because this is acting towards the left. Negative 0.46 divided by time, that is 0.084. फोर्स क्या आ जाएगी? 6.9 न्यूटन.
Okay, Leonardo da Vinci proposed a flying machine that would work like a screw to lift the pilot into the air. The screw is rotated by the pilot. Okay. The machine and the pilot together have a mass of this. Okay. Which useful output power must the pilot provide to move vertically upwards at a constant speed of 2.5 meters per second? अच्छा जी, आपने बताना है कि कितना यूजफुल आउटपुट पावर प्रोवाइड करेगा पायलट so that the pilot and the screw moves up with a velocity of 2.5 meters per second. अच्छा जी, पावर का क्या फॉर्मूला होता है? पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम। बेटा अगर आपको पायलट को वर्टिकली अपवर्ड्स मूव कराना है, अगर आपको पायलट को वर्टिकली अपवर्ड्स मूव कराना है, कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी गेन हो रही होगी? एम जी एच, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। कैन यू रियलाइज दिस height over time आपको already given है, you are already provided with the velocity 2.5. Yes, mg into velocity, what is the mass? 120. Gravitational field strength क्या है? 9.8. velocity क्या है? 2.5. मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आता है? 120 into 9.81 into 2.5. This gives you a value of 2900 volts as your answer. Easy peasy lemon squeezy, कोई डिफिकल्ट बात इसमें नहीं की। हमने क्या निकालना था? देखो बेटा, यूजफुल पावर आउटपुट। पावर आउटपुट किसके इक्वल होता है? एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय टाइम के। यू आर मूविंग दिस वर्टिकली अपवर्ड्स, तो आपकी आउटपुट एनर्जी क्या हो जाएगी? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। एच ओवर टाइम इज योर वेलोसिटी, वेलोसिटी इज ऑलरेडी गिवन, मास इज 120, जी इज 9.81। मल्टीप्लाई कर दो, 2900 वोल्ट्स इज योर आंसर। इससे आसान सवाल हो नहीं सकता। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। उमर बेटा, फोर्स इनटू वेलोसिटी को थोड़ा सा स्विच अप करना था, थोड़ा सा इसको ना स्विच अप करके देखना था। Which force describes a force that forms a couple? डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है कपल में? ऑपोजिट। तो सी और डी को तो शराफत से कैंसिल कर दो। मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस क्या होता है? इक्वल। 13 का आंसर इज बी। ये कुछ कुछ सवाल एग्जामिनर ऐसे देता है जो वो चाहता है कि आप कर लो ताकि आप पास हो जाओ, जैसे कि ये सवाल था। अच्छा जी, लेट्स सी दिस। अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ 25 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ न्यूटन मीटर। द सिलेंडर इज फुल्ली सबमर्ज्ड इन वाटर एज शोन। द रीडिंग ऑन द न्यूटन मीटर इज 10 न्यूटन। ओके, देखो एक सिलेंडर है जिसका वेट था 25 न्यूटन। जब आपने इसको वाटर में सबमर्ज किया, न्यूटन मीटर पे रीडिंग क्या आ गई? 10 न्यूटन। पहले भी मैं बता चुका हूं, न्यूटन मीटर पे जो रीडिंग आती है वो किसकी आती है? रिजल्टेंट फोर्स की या रिमेनिंग फोर्स की रीडिंग इज ऑन द न्यूटन मीटर। ओके, तो अब मुझे नहीं पता आगे ये यूज होता है नहीं होता। यहाँ पे इफ दिस सिलेंडर इज इन वाटर, व्हाट विल बी द अपवर्ड फोर्स? Upward force will be of upthrust. So you can say weight minus upthrust is equals to 10 Newton. Weight की वैल्यू क्या है? 25 minus the upthrust. Upthrust is equals to 15 Newton. बेटा मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, मैं आप लोग के साथ ही ये पेपर कर रहा हूँ, ऑनेस्टली नहीं पता सवाल में यूज होती है या नहीं, बट सिर्फ ये की पॉइंट लिख लो कि न्यूटन मीटर पे हमेशा आपको रिजल्टेंट फोर्स मालूम होती है। ओके, the water is replaced by a liquid with a density 10% greater than the density of water. अच्छा जी, ये water को हमने replace कर दिया है with a liquid that is 10% greater in density. The cylinder remains fully immersed. What is the new reading of the Newton meter? अब थोड़ा सा गौर करो। अच्छा है हमने अपथरस निकाल लिया। अपथरस का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इनटू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड को अगर 10% से इंक्रीज कर रहे हो, if the density of the fluid goes from this to 1.1 density of the fluid, तो अपथरस भी क्या होगा? 10% से इंक्रीज हो जाएगा, 1.1 यू हो जाएगा। अभी अपथरस क्या है? 15। 1.1 इंटू 15 क्या हो जाएगा? कैलकुलेट करो। 1.1 इंटू 15, दिस विल कम आउट टू बी 16.5 न्यूटन। और मैंने क्या बताया था? न्यूटन मीटर पे जो रीडिंग आती है वो रिजल्टेंट फोर्स की आती है। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी? वेट माइनस द न्यू ऑफ थ्रस्ट।
वेट तो चेंज नहीं होगा 25। न्यू अपथ्रस्ट क्या है 16.5, माइनस कर दो, क्या आंसर आता है 25 माइनस 16.5। है ना इजी, फिजिक्स इजी है ना। 8.5 न्यूटन। ए इज योर आंसर, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। पूछो क्या मसला है यहाँ पे, किसी को कोई मसला? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जी। A student balances a 30 centimeter ruler on a fulcrum set on the 15 centimeter mark। ठीक है, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर मार्क पे आपने fulcrum को सेट कर दिया है और ये रूलर को आपने बैलेंस कर दिया है दैट इज 30 सेंटीमीटर। ओके, she then places a 50 gram mass on the 23 centimeter mark and a 20 gram mass on the 11 centimeter mark as shown। ठीक है ठीक है ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर मार्क है। ठीक है, which mass should she place on the 7 centimeter mark to restore the balance? अब बैलेंस रिस्टोर करने के लिए क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। ऑनेस्टली इजीएस्ट पॉसिबल थिंग ऑन प्लैनेट अर्थ। ये 50 ग्राम का जो मास है वो आपकी रॉड को किस तरह रोटेट करेगा? इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस विल जनरेट अ क्लॉकवाइज मूवमेंट। 50 ग्राम्स। अब 50, अच्छा आप देखो, अब थोड़ा सा ना लॉजिकली यहाँ पे बिहेव करोगे तो बहुत जल्दी ये सवाल हो सकता है। अब मैं मासेस को किलोग्राम्स में नहीं कन्वर्ट करता, 50 ग्राम्स को kilograms में नहीं कन्वर्ट करता बिकॉज ऑल द masses आर इन grams, so eventually they will cancel each other. How will I calculate the clockwise moment? Force into the distance from the pivot. This is 15, this is 23. Distance from the pivot क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर्स को भी मीटर्स में नहीं कन्वर्ट करूंगा because all the measurements are in centimeters, they will eventually balance out. Force क्या हो जाएगी? 50, that is the grams, multiplied by 9.81 into the distance, that is 8. एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सा होंगे? ये वाला। If I place a 20 gram here, it will move the rod in anti-clockwise direction. अगेन जब एंटी क्लॉकवाइज निकाल रहा हूँ, ग्राम्स को किलोग्राम्स में नहीं कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर्स को मीटर्स में नहीं कन्वर्ट किया। व्हाई? बिकॉज ऑल द मेजरमेंट्स आर इन ग्राम्स एंड सेंटीमीटर्स, दे विल इवेंचुअली कैंसिल आउट। 15 से 11 आपका डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर दो। देन how much mass should you place here? This will also generate an anti-clockwise moment. This is equals to mass into 9.81 into 7 से लेकर 15 तक का क्या डिस्टेंस होगा? 8 सेंटीमीटर। ओके, अब जरा कर दो। एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज कितना है? 8m into 9.81, that is this value, plus 20 into 9.81 into 4। क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना है भाई? 50 into 9.81 into 8। Can you now realize all the 9.81 can get cancelled out, cancel out, cancel out? क्या बच जाएगा? 8m plus 20 into 4 is equals to 50 into 8। Can you calculate the value of m now? Yes, 50 into 8 minus 20 into 4 divided by 8। 40 grams या B comes out to be your mass। आ गई बात समझ में? 15 का आंसर इज बी। A submarine is at a depth of 130 meters below the surface of the sea. Okay. The pressure on the submarine due to the sea water is P. Okay. 130 meters के distance पे या depth पे आपका pressure P है. The submarine sinks to a depth of 260 meters below the surface. Assume that the density of seawater is constant. What is the difference between the pressure of the submarine ड्यू टू द सी वाटर एट द टू डेप्थ्स? आपने डिफरेंस इन प्रेशर निकालना है या चेंज इन प्रेशर निकालना है? ओके, हाउ विल वी डू दैट?
How will we calculate the change in pressure या फिर difference in pressure? Any ideas geniuses? बहुत बहुत easy है. देखो, ये आ गया आपका सी, ये आ गई आपकी सबमरीन at a depth of 130 meters. Can you calculate the pressure here? Yes. Pressure P here is equals to the density G into the height, that is 130. ये हो जाएगा 130 रो जी. सिंपल. अब आपने प्रेशर निकालना है एट अ डेप्थ ऑफ 60 meters. हाउ विल यू कैलकुलेट दैट? कैसे निकालोगे प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल टू रो जी इंटू 260, दैट इज 260 रो जी. अब डिफरेंस इन प्रेशर निकालना है. Difference in pressure is equals to 260 rho g minus 130 rho g. That comes out to be 130 rho g, which is equals to the actual value of pressure P. C is your answer. आगे बढ़ते. An object is falling in a uniform gravitational field. Which two quantities are sufficient to calculate the change in gravitational potential? अच्छा जी, आपने चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. कौन सी दो क्वांटिटी सफिशिएंट हैं? Change in gravitational potential energy is equals to what? Mass g into change in height. कौन सी दो quantities आपको चाहिए होंगी? You will require mg, that is equals to the weight, and the change in vertical height d. The point x, y and z are on a rough horizontal surface. Rough का मतलब क्या है? Friction present है भाई. चलो जी, friction present है. Box P is pushed across the surface from x to y. अच्छा जी, box P को हमने push किया है from x to y, okay, and then from y to z. मतलब आप इसको x to y ले जा रहे हो, फिर y to z ले जा रहे हो, okay. The distance from x to y is 3 meters. The work done against the frictional force in moving from x to y is 150 joules. अच्छा जी, x to y का frictional work done क्या है? 150 joules, okay. The work done against the frictional force in moving the box from Y to Z is 200 joules. Okay. An identical box Q is pushed in a straight line from X to Z. अच्छा, एक आइडेंटिकल ब्लॉक है या बॉक्स है, उसको हमने ये ऑरेंज पाथ के थ्रू पुश किया है X to Z. Okay. The magnitude of frictional forces between the box and the surface is constant. Okay, no problem. ठीक है. How much extra work is done against the frictional force in moving P then moving Q? बहुत आसान सा सवाल है. जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड. बेटा देखो, 150 joules of work done against friction is done in this 3 meter. यहाँ पे 3 मीटर में आपको 150 joules of frictional work करना पड़ रहा है. तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन यहाँ पे x to y लेबल कर देता हूँ. वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फ्रॉम x to y इज 150 joules. फ्रिक्शनल फोर्स इनटू द डिस्टेंस इज इक्वल टू 150 joules. डिस्टेंस क्या है? 3. फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगी भाई? 150. फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन. सिंपल, इजी पीजी, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हियर. अब एक और काम कर लेते हैं. y टू z आपका वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या है? 200 joules. तो यहाँ पे लिख दो y टू z आपका वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है वो 200 joules है. You already know the frictional force. You have to calculate the distance from y to z. Frictional force क्या है? 50. Distance from y to z क्या हो जाएगा? हाँ जी, 200 divided by 50, that is 4 meters. y to z आपका डिस्टेंस क्या हो गया? 4 meters. ये 3 meters है, ये 4 meters है. बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है. ये एक्स जेड निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. यस. एक्स जेड इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. एक्स जेड की वैल्यू कम्स आउट टू बी 5 meters. अब क्या आप एक्स जेड के लिए वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकाल सकते हो जी? फ्रिक्शनल फोर्स इनटू द डिस्टेंस. फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? 50. डिस्टेंस क्या है? 5. दिस कम्स आउट टू बी 250 जूल्स. अब ये 250 जूल्स लग रही है ऑन बॉक्स क्यू. बॉक्स क्यू पे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या लग रही है? 250 जूल्स.
और बॉक्स बी पे क्या थी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन 200 प्लस 150। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर बॉक्स बी द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज 200 प्लस 150 दैट इज 350 जूल्स। फॉर बॉक्स क्यू द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज 250 जूल्स। दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, द डिफरेंस कम्स आउट टू बी 100 जूल्स। इजी पीजी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट या you have to do complicated things to get the mark. The momentum of a car of a mass m increases from p1 to p2. What is the increase in kinetic energy of the car? बेटा kinetic energy का एक फॉर्मूला लिखाया था, momentum square divided by 2। अगर मोमेंटम P1 से P2 जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा? मोमेंटम 2 का स्क्वायर मोमेंटम 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ma इज योर आंसर। सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हियर। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन 20 पे। A parachutist is falling at constant terminal velocity। अच्छा, आप टर्मिनल वेलोसिटी पे फॉल कर रहे हो। Which statement is not correct? Gravitational potential energy is converted into kinetic energy of the air? Not पॉसिबल, आई थिंक ये कह सकते फिर भी पॉसिबल है, बिकॉज हो सकता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हीट प्रोवाइड कर रही हो या हीट में कन्वर्ट कर रही हो इनटू द एयर एंड दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पैराशूट इज नॉट टोटली पॉसिबल। बेटा आपका पैराशूटिस्ट तो अब कांस्टेंट वेलोसिटी पे ट्रैवल कर रहा है। अगर आप फॉल भी कर रहे हो, आपकी हाइट डिक्रीज हो रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, दैट इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। व्हाई? बिकॉज आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पैराशूट इज कांस्टेंट। ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। कैसे निकालोगे? If a force of 2.4 न्यूटन is applied, अगर force of 2.4 न्यूटन is applied, आपकी लेंथ क्या कर गई है? 0.2 से 0.6 चली गई है। लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट क्या आया है? एक्सटेंशन क्या आई है बेटा? 0.4 meters. So extension is 0.4 meters. Can you calculate k? K is equals to force over extension. Force is 2.4, extension is 0.46 न्यूटन पर मीटर। D is your answer. 21 का आंसर क्या है भाई? D. सिंपल। आगे बढ़ते हैं। The graph shows the variation with force of the extension of a wire। ठीक है, extension versus force का ग्राफ given है। Okay, the force is gradually increased to a maximum at Q। Okay, and then gradually decreased to zero at R। Okay, which statement is correct? कौन सा statement correct है? Along the line PQ the wire obeys Hooke's law। नहीं, PQ पे Hooke's law कहाँ लगेगा भाई? ये PQ तो कर्व हो रहा है। No no, not possible, not possible। Along the line RP, अच्छा जी, RP कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन। ठीक है, along the line RP the spring constant is equal to no, spring constant force over extension के इक्वल होता है। The wire has elastic deformation at point Q। ये पॉसिबल है। This is possible। The wire has elastic deformation at point Q। Why do I say that? क्योंकि देख रहे हो जब आप फोर्स डिक्रीज कर रहे हो तो देन यू रिटर्न टू द ओरिजिनल एक्सटेंशन ऑफ जीरो। देयर इज नो परमानेंट एक्सटेंशन, नो परमानेंट एक्सटेंशन। हेंस एट पॉइंट क्यू ये पॉसिबल है कि आपका वायर सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक डिफॉर्मेशन गो थ्रू कर रहा है। देयर इज नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिकॉज व्हेन यू डिक्रीज द फोर्स इट अगेन रिटर्न्स टू एन एक्सटेंशन ऑफ जीरो, नो परमानेंट एक्सटेंशन। आगे बढ़ते हैं। A uniform wire of length L, diameter D has a spring constant K। What is the Young's modulus? Young's modulus का फॉर्मूला क्या होता था? FL over AE। क्या आप रियलाइज कर सकते हो? फोर्स ओवर एक्सटेंशन को आप किससे रिप्लेस कर दोगे? दिस फोर्स ओवर एक्सटेंशन कैन बी रिप्लेस बाय व्हाट? बाय स्प्रिंग कांस्टेंट K, L over A। एरिया का क्या फॉर्मूला है? एरिया के दो फॉर्मूला लिखवाए थे, पाई आर स्क्वायर, और एरिया का दूसरा फॉर्मूला क्या लिखवाया था? पाई डी स्क्वायर ओवर 4। लेट्स प्लेस इट हियर। Young's modulus is equals to KL over pi d square over 4। 4 को ऊपर ले जाओ। 4KL divided by pi d square। कोई ऑप्शन है ऐसा? D is your option। 23 का आंसर is D। Let's further move ahead। आगे बढ़ा जाए भाई, चलो। An aircraft produces a frequency of
30 हर्ट्ज, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है. द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज दिस. ओके. The aircraft is directly in front of the stationary observer and it travels in a straight line towards or away from the observer. अच्छा, दोनों possibilities. The observer hears the sound from the aircraft at a frequency of this. अब ये तो बहुत easy हो गया. आपका एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज. आपका ऑब्जर्वर हेयर कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कम हो गई है, तो एयरक्राफ्ट क्या करेगा? अवे ट्रैवल कर रहा होगा. तो ऑप्शन बी और डी को तो पक्का पक्का कैंसिल आउट कर दो. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट. हाउ विल यू डू दैट? whenever an object is traveling away, डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व का फॉर्मूला लगाओगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स. फ्रीक्वेंसी पता है? यस, 30. फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व पता है? यस, 20. वेलोसिटी ऑफ साउंड पता है? जी सर, 330. 330 minus the frequency, velocity of source that we have to calculate. Switch the places. 330 minus speed of sound, 30, not speed of aircraft. 330 divided by what? Divided by 20. Calculate करो क्या आंसर आता है. 30 into 330 divided by 20. 330 minus Vs is equals to 495. Vs को what can we do now? Oh sorry, my bad. जब भी आप अवे मूव कर रहे होते हो, योर डिनोमिनेटर हैज अ प्लस इन इट. सॉरी, माय बैड. योर डिनोमिनेटर हैज अ प्लस इन इट. वीएस को यहाँ पे रखो. 495 माइनस 330. सॉरी, अ ब्रेन फीड मूवमेंट फ्रॉम माय साइड. Your velocity of the aircraft or the source comes out to be 165 meters per second. C is your answer. आ गई बात सर. क्या? चलो आगे बढ़ते. Which statement about longitudinal and transverse wave for a progressive wave is correct? All transverse and longitudinal wave require a medium for propagation. हमने ऐसा स्टेटमेंट बताना है जो दोनों के लिए करेक्ट हो. ठीक है, ये दोनों के लिए करेक्ट नहीं है. ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रैवल इन वैक्यूम्स एज वेल. ठीक है. All transverse wave travel at the same speed, but longitudinal wave, no, this is also not correct. In both transverse and longitudinal wave, the particle with zero displacement has a maximum speed. C is the correct answer. आगे बढ़ते. The diagram shows a progressive transverse wave on a stretched spring at one instant at time. One point on the string is labeled X. अच्छा जी, one point on the string is labeled X. Which point on the string is 270 degree out of phase with X? अच्छा जी, हमने एक पॉइंट निकालना है जो 270 degrees out of phase हो with X. How will we do that? किस तरह कैलकुलेट करेंगे वो पॉइंट? नाउ देखो, एक वेव में ना, एक वेव को आप 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर सकते हो. मैंने ये बात पहले बहुत दफा की है वीडियोस में और लेक्चर्स में भी तुमको बहुत दफा ये बात पढ़ाई है. एक वेव को आप 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर सकते हो. फ्रॉम द मीन वैल्यू टू द पीक वैल्यू. ए क्या इसको मैं क्वार्टर्स में डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो एक काम करता हूँ. दिस इज एक्स वाई जी ए एंड बी. एक्स से लेकर वाई तक एक क्वार्टर है, वाई से लेकर जेड तक दूसरा क्वार्टर है, जेड से लेकर ए तक थर्ड क्वार्टर है, ए से बी तक चौथा क्वार्टर. एंड एवरी क्वार्टर एक्स से वाई, वाई से जेड, जेड से ए से बी, हर क्वार्टर रिप्रेजेंट करता है एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड वेवलेंथ ऑफ व्हाट? वेवलेंथ कितनी रिप्रेजेंट करता है? लैम्डा ओवर 4. ठीक है. तो अब मैंने देखना है कि एक्स से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो 3 क्वार्टर्स दूर है. अगर बी देखूं तो वो 1 क्वार्टर दूर है. एक्स और बी के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? 90 डिग्री का. एक्स और सी के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? 2 क्वार्टर्स का. दैट इज 180 डिग्री. नॉट माय कप ऑफ टी. और ये एक्स और डी के बीच में कितना डिफरेंस है? 360 डिग्री का. 90 एंड 90. ठीक है, टोटल 360.
ऑल दीज ऑप्शन आर नॉट पॉसिबल। हाउएवर अगर आप पॉइंट ए को देखें, पॉइंट ए में यहां से यहां तक 90 डिग्री, यहां से यहां तक फर्दर 90 डिग्री, यहां से यहां तक फर्दर 90 डिग्री, टोटल कितना फेज डिफरेंस हो जाएगा फ्रॉम ए टू एक्स? 270 डिग्री ए जीरो। अब 27 पे आ जाओ। विच वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन फ्री स्पेस कुड बी ग्रीन लाइट? अच्छा जी, हमने ग्रीन लाइट की वेवलेंथ बतानी है। अब कैसे बताएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो याद रखो, ग्रीन लाइट इज अ पार्ट ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की वेवलेंथ किस रीजन में होती है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। ऑप्शन डी कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन डी ही बस कैंसिल आउट होगा, बाकी ऑप्शन आर रादर। अब ग्रीन लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है? हमेशा इस बात को याद रखना, ग्रीन लाइट की वेवलेंथ इज राउंड अबाउट 550 नैनोमीटर, दैट इज रफली इक्वल टू दिस। सर आपको कैसे पता चला ये 550 नैनोमीटर है? 5.5 को एक डेसिमल प्लेस, दो डेसिमल प्लेस आगे ले जाओ, 550 10 raised to the power of -9 nanometers is your answer. Which group contains only those waves that can be polarized? कौन सी waves polarize हो सकती है? Only transverse wave। तो हमने ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ transverse waves हो। Let's see. Infrared, nah, sound wave is a longitudinal wave. Cancel this out. Visible light, radio wave. हाँ, this could be an option. B could be an option. Why? क्योंकि visible light waves, microwaves, radio waves, transverse wave है। ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। अब आ जाओ 29 पे। अब आ जाओ 29 पे। 29 पे आ जाओ बेटा। क्या रखा हुआ? अब ये मैंने क्लास में बहुत दफा पढ़ा है। One wave has an amplitude of 2a. A second wave has an amplitude of a over 2. The waves are otherwise identical. What is the ratio of maximum amplitude of the combined? Minimum amplitude of the combined. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बेटे क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है? अगर दोनों एम्पलीट्यूड्स को प्लस कर दिया जाए, 2a प्लस a ओवर 2, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 5a ओवर 2। मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 2a माइनस a ओवर 2, दैट इज इक्वल टू 3a ओवर 2। डिवाइड कर दो। 5a over 2 divided by 3a over 2, 2 cancel out, a cancel out, 5 over 3 is your answer, B is your answer। 29 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? B। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आगे बढ़ते हैं। Light of wavelength 680 nanometer is incident normally on a diffraction grating with 400 lines per millimeter. Wow. What is the angle of diffraction of the second order? N is equals to 2। Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमने? डू यू रिमेम्बर? हाँ जी, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे? डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब डी कैसे निकालेंगे? दिस स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। एन क्या है? एन इज नंबर ऑफ लाइंस इन 1 मीटर। अब ये कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ लाइंस इन 1 मीटर? हाँ जी, नंबर ऑफ लाइंस इन 1 मीटर कैसे निकालेंगे? इफ अब देखो, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। ये वाला सवाल तो मैंने करा दिया ना, लेट्स रिमूव दिस वर्किंग। ठीक है बेटा, आप थोड़ा सा गौर करो। अगर 400 लाइंस हैं इन 1 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर या 1 मीटर में कितनी लाइंस होंगी? एक्स प्लेस कर दो। एक्स इसके इक्वल हो जाएगा 450 000 लाइंस पर मीटर। देखो, आपने डी कैसे निकालना है? डी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ लाइंस इन 1 मीटर। अगर 450 लाइंस है 1 मिलीमीटर में, 1000 मिलीमीटर में कितनी लाइंस होंगी? 450 000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी। 1 डिवाइडेड बाय 450 क्या आंसर आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 450 दिस कम्स आउट टू बी 2.2 10 raised to the power of -6। डी की वैल्यू क्या आ गई? 2.2 10 raised to the power of -6। लेट्स डू द रिमेनिंग वर्किंग। बाकी की वर्किंग कर लेते हैं। डी की वैल्यू इज, बाकी की वर्किंग लेट्स डू इट हियर। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। 2.2 into 10 raised to the power of -6 साइन ऑफ थीटा
एन क्या है 2, वेवलेंथ क्या है आपकी 680 नैनोमीटर, 680 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कैन यू कैलकुलेट द एंगल? जी बिल्कुल, 2 इंटू 680 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय व्हाट, 2.2 into 10 raised to the power of -6. Can you calculate the angle theta? Sine inverse 2 into 680 into 10 raised to the power of -9 divided by 2.2 10 raised to the power of -6. Can you calculate the angle theta? बच्चों एंगल थीटा निकाल सकते हो। And what does your angle theta comes out to be? Any geniuses in the chat? Angle theta comes out to be 38 degrees. Please calculate it. क्योंकि ये जो एमसीक्यूज का पेपर होता है ना, इसमें कैलकुलेशंस करना, कैलकुलेटर से फेमिलराइज्ड होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेट करो क्या आंसर आता है बेटा। 38 शुड बी योर आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते 31 पे आ जाओ। A hollow tube is closed at one end and open at the other. A stationary wave of the lowest frequency is this. मतलब ये fundamental frequency है आपकी is positioned in the tube. The speed of the wave is this. What is the length of the tube? अच्छा जी, आपने length of the tube निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू रियलाइज आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, कैन यू कैलकुलेट वेवलेंथ? यस, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वेलोसिटी क्या है 330, फ्रीक्वेंसी क्या है 820 हर्ट्ज। वेवलेंथ निकाल लोगे, वेवलेंथ इज इक्वल टू 330 डिवाइडेड बाय 820। व्हाट इज योर वेवलेंथ? 330 डिवाइडेड बाय 820। क्या आ गई वेवलेंथ? 0.4 मीटर्स इज योर वेवलेंथ। अब देखो, यू हैव अ हॉलो ट्यूब विच इज क्लोज्ड एट वन एंड, ओपन एट वन एंड। मतलब यहाँ पे क्लोज है, ओपन यहाँ पे। एट द क्लोज एंड आपके पास क्या होगा? नोड हो जाएगा। एट द ओपन एंड आपके पास क्या हो जाएगा? एंटी नोड हो जाएगा। एंटी नोड से नोड वेवलेंथ क्या आ जाएगी? 1/4 लैम्डा। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या हो जाएगी? 1/4 लैम्डा। लेंथ इज इक्वल टू 1/4 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्या थी? 0.4। 1/4 into 0.4, length comes out to be 0.1 meters, which is equals to 10 centimeter. A is your answer. Easy peasy. आगे बढ़ते हैं। Which expression gives the definition of resistance? Resistance की definition क्या होती है? Potential difference divided by the current. C is your answer. ठीक है, all good. आगे बढ़ते हैं। The graph shows the current versus voltage characteristics of an electrical component. Categorically ये नोट्स में लिखाया था, अगर इस तरह का करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ आ जाए, this is of a semiconductor diode. The diagram shows 6 identical resistors. 6 identical resistors का मतलब क्या है? हर किसी की रेजिस्टेंस होगी R। Connected in a circuit. In which branch of the circuit is the most power dissipated? किस ब्रांच में सबसे ज्यादा पावर? थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्किट थोड़ा सा ना अजीब सा बना हुआ है। अच्छा जी, so we have 6 identical resistors arranged like this. In which branch is the most power dissipated? हमने निकालना है कि किस ब्रांच में सबसे ज्यादा पावर डिसिपेट हो। तो अब आप एक काम करो, अब आप इन दो रेजिस्टर्स की कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालो। दिस इज आर, बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? R/2। यहाँ पे R है, ये R है, दिस विल बिकम 2R। ठीक है, तो पी क्यू की टोटल रेजिस्टेंस हो गई 2R। क्यू आर की टोटल रेजिस्टेंस R है, पी एस की टोटल रेजिस्टेंस R है, एस आर की टोटल रेजिस्टेंस R/2 है। आपने निकालना है विच वन हैज द मोस्ट पावर डिसिपेटेड। थोड़ा सा सुन लो, विच वन हैज द मोस्ट पावर डिसिपेटेड। कैसे निकालेंगे मोस्ट पावर डिसिपेटेड? अब देखो, मोस्ट पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाया जा सकता है? विच फॉर्मूला कैन अप्लाई हियर? मोस्ट पावर के लिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया जा सकता है? अब वापस से ना हम अपनी सर्किट डायग्राम बनाते हैं। दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज लाइक दिस,
अब थोड़ी सी मैं लेबलिंग कोशिश करता हूँ कि अच्छी करूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। दिस इज पॉइंट पी। ओके, पॉइंट पी के बाद आपके पास यहाँ पे एक रेजिस्टर आ गया, दिस। ओके, देन यू हैव two resistors in parallel combination like this. Okay, जस्ट फोकस करते जाओ बोर्ड पे। ये आ गया आपका पॉइंट आर, ये आ गया आपका पॉइंट एस, कह लो उसको, हाँ पॉइंट एस आ गया ये। एंड देन यू टेक दिस टू द डाउन साइड, मर्ज इट लाइक दिस। टॉप वाली साइड पे आपके पास क्या है भाई? टॉप वाली साइड पे यू हैव टू रेजिस्टर्स अगेन। ये थोड़ा सा ना सर्किट डायग्राम इसके समझ लोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। देन यू हैव only one resistor which is connected to R lines, और ये बीच वाला पॉइंट Q है। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने ये वाली ब्रांच, ओहो, व्हाट आई हैव एक्चुअली डन इज के, थोड़ा सा अगर हम इसको हाईलाइट कर सकें तो इस वाली ब्रांच को सीरीज में बना दिया, ये येलो हाईलाइटेड ब्रांच को सीरीज में बना दिया, और ये ब्लू हाईलाइटेड ब्रांच को भी सीरीज में बना दिया। वन सेकेंड, I have created the yellow highlighted branch in series और blue highlighted branch को भी series में connect कर दिया है like this. Oh, why is this? हाँ, ये blue वाली branch जो है series में बना दी है, yellow वाली branch भी series में बना दी है। This is your almost perfect diagram. ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमने जो resistances निकाली है ना, उनको यहाँ पे replace कर दो। You can say these two resistances between P and Q can be labeled with a single resistance known as, इसको अब हम सिंगल रेजिस्टेंस से लेबल कर देते हैं, लेट्स से 2R। और ये S और R के बीच में जो रेजिस्टेंस थी उसको अब हम रिप्लेस कर देते हैं विद अ सिंगल रेजिस्टेंस, लेट्स से R over 2। दिस इज R, दिस इज R। अब फोकस करते जाओ दोनों ब्रांचेस में, दैट इज इन दिस ब्लू ब्रांच एंड इन दिस येलो ब्रांच, आपका टोटल वोल्टेज क्या रहेगा? सेम रहेगा, यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी V रहेगा। ओके, नाउ व्हिच ब्रांच विल हैव अ ग्रेटर करंट? मुझे बताओ किस ब्रांच के पास करंट जो है वो ज्यादा होगा? व्हिच ब्रांच विल हैव अ ग्रेटर करंट? ऑब्वियसली द ब्रांच व्हिच हैज द लोअर टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस लोअर किसकी है? Which branch has the total lower resistance? If you calculate the total resistance of the blue branch, ये क्या हो जाएगी? R plus 0.5 R, 1.5 R ही आ गई। येलो वाली ब्रांच की टोटल रेजिस्टेंस क्या है? 2R plus R, दैट इज 3R। तो ज्यादा करंट किस में होगा? ब्लू वाली ब्रांच में, दैट इज यहाँ पे कहीं पे ज्यादा पावर सबसे ज्यादा होगी। Now we can ignore the top half. We can ignore the top half. We will see the bottom. क्योंकि हमें पता चल गया बॉटम हाफ में करंट ज्यादा होगा, बिकॉज बॉटम हाफ हैज लोअर रेजिस्टेंस। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आई वी। ठीक है, करंट ज्यादा किस ब्रांच में है? ये पी आर वाली ब्रांच में, तो यहाँ पे कहीं आपका पावर भी सबसे ज्यादा होगा। अब आउट ऑफ द रेजिस्टर आर एंड आर ओवर टू, ज्यादा वोल्टेज किसके पास होगी? बेटा आर और आर ओवर टू में से ज्यादा वोल्टेज कौन खाएगा? ऑब्वियसली रेजिस्टर आर। Resistor R will eat up more voltage because the higher resistance you have, the higher voltage you will consume. अगर R ज्यादा वोल्टेज खाएगा तो मोस्ट पावर किस ब्रांच के अक्रॉस हो गई? पी एस। Wasn't this a tricky question? D is your answer. वापस समझाता हूँ शुरू से वापस समझाता हूँ बिकॉज दिस इज वेरी वेरी ट्रिकी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हमने हर ब्रांच की टोटल रेजिस्टेंस निकाल ली। इसकी 2R है, इसकी R है, इसकी R है, इसकी R ओवर 2 है।
देन वी कंस्ट्रक्टेड द सर्किट अगेन, हमने सर्किट को वापस से बनाया। येलो वाले रीजन सीरीज में है, ब्लू वाले रीजन भी आपस में सीरीज। नाउ जो येलो वाली ब्रांच है उसकी टोटल रेजिस्टेंस क्या है, 2R प्लस आर, दैट इज 3R। ब्लू वाली ब्रांच की टोटल रेजिस्टेंस क्या है, R प्लस 0.5R, दैट इज 1.5R। बेटा रेजिस्टेंस किस ब्रांच की कम है, ये ब्लू वाली ब्रांच की रेजिस्टेंस जो है वो कम है, हेंस द करंट इन द ब्लू ब्रांच विल बी ग्रेटर। तो आपकी जो मैक्सिमम पावर है वो या तो इस रेजिस्टर R में होगी या R/2 में होगी, बिकॉज दे आर गेटिंग द मैक्सिमम करंट। अब मुझे बताओ R या R/2 में से वोल्टेज किसके पास ज्यादा होगा, ऑब्वियसली R के पास, बिकॉज इट हैज अ हायर रेजिस्टेंस, इसके पास वोल्टेज भी हाई होगा, तो PS हैज द हाईएस्ट पावर। बात सुनो, चलो आगे बढ़ते। दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, बाकी सारे आसान थे। The diagram shows a circuit containing a thermistor, a fixed resistor, and a battery. The graph shows the current versus voltage characteristics of both the components. The battery has an EMF of 12 volts and negligible internal resistance. What is the current in the fixed resistor? What a beautiful question. आपने बताना है कि what is the current in the fixed resistor. अब देखो बैटरी का EMF क्या है, 12, सही है। तो लेट्स डू सम मैथमेटिक्स हियर, ठीक है, लेट्स डू सम मैथमेटिक्स। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, 0.36, 0.36 एम्पियर का करंट कहाँ पे होगा, दिस इज 0.2, यू आर गोइंग फ्रॉम 0.2 टू 0.4, 0.2 यूनिट्स कवर कर रहे हो इन हाउ मेनी बॉक्सेस, 1 2 3 4 5, तो यू आर कवरिंग 0.2 यूनिट्स इन 5 बॉक्सेस, वन बॉक्स एक बॉक्सेस के इक्वल होगा 0.0, तो दिस विल बी 0.36। अब 0.36 मिली एम्पियर पे अगर आप वोल्टेज देखते हो तो फिक्स रेजिस्टर का क्या वोल्टेज आ रहा है, समवेयर हियर, दैट इज this will be what, this will be 4, 4.4, 4.8, 5.2, this will be 5.4, और ये क्या आ रहा है, this will be 6.6 डाउन हो। 5.4 प्लस 6.6 कितना वोल्टेज होता है टोटल, 12 वोल्ट्स, दैट इज इक्वल टू द EMF। ए इज योर आंसर। अब सर आप ए ही को आंसर क्यों कह रहे हैं, आपने तो बाकी टेस्ट भी नहीं किए। चलो बाकी टेस्ट कर लेते हैं तुम लोग की दिल की तसल्ली के लिए। लेट्स से करंट इज 0.4 एम्पियर, लेट्स से आपका करंट जो है वो 0.4 मिली एम्पियर है। देखो होगा क्या, इफ योर करंट इज 0.4 मिली एम्पियर, लेट्स मेक अ डॉटेड लाइन हियर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज 6, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द थर्मिस्टर इज 6.6, 6 प्लस 6.6 टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, 12.6। टोटल वोल्टेज कभी भी ईएमएफ से ज्यादा नहीं हो सकता। वी विल ओनली चूज द करंट वैल्यू वेयर द वोल्टेज अक्रॉस द एलडीआर प्लस द वोल्टेज अक्रॉस द थर्मिस्टर प्लस द वोल्टेज अक्रॉस द फिक्स्ड रेजिस्टर गिव्स यू अ टोटल वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। उससे ज्यादा की अगर कोई वैल्यू दे रहा है तो आप उसे क्रॉस आउट कर दोगे, यू विल नॉट यूज दैट। ऑल क्लियर, यस और नो, परफेक्ट, आगे बढ़े, चलो लेट्स मूव अहेड। Two resistors R1 and R2 are connected in parallel. What is the combined resistance? हमेशा याद रखो अगर दो resistors parallel में हैं तो उनकी combined resistance can be the product divided by the sum of the two resistors. अगर दो resistors parallel में हैं तो उनकी total resistance will be equal to the product of the resistances divided by the sum of the resistances. B is your answer. A cell is connected in series with an ammeter and a variable resistor. A voltmeter is used to measure the potential difference across the variable resistor. The resistance of the variable resistor is varied and the potential difference and the current are recorded. Okay. The graph shows the potential difference versus current the graph for the variable resistor. What is the internal resistance of the cell? बेटा मैंने आपको क्या बताया था, अगर वोल्टेज वाई एक्सिस पे है, करंट एक्स एक्सिस पे है, द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ग्रेडियंट निकाल लो। लेट्स टेक दिस पॉइंट 0, 1.6 और दूसरा कौन सा पॉइंट ले लें, ये ले लेते हैं। चल दिस इज 40, 0.8, दिस इज x1 y1, दिस इज x2
y2. Can you calculate the gradient? Yep. Gradient is equal to 0.8 minus 1.6 divided by 40 minus 0. What are the units on the y and x axis? Y axis पे क्या है? कोई भी units नहीं है. X axis पे you have milliampere, so multiply it by 10 raised to the power of minus 3. What does your gradient comes out to be? Gradient निकालें जरा. 0.8 minus 1.6, 40 into 10 raised to the power of minus 3. The gradient comes out to be minus 20 ohm. That is equals to negative internal resistance. R is equals to 20 ohms. C is your answer. बेटा हमेशा याद रखो जब भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैंने थ्योरी में भी पढ़ाया है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाई एक्सिस पे होगा, करंट एक्स एक्सिस पे होगा, इसका ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस की नेगेटिव. एंड यहाँ पे ईएमएफ क्या होगा? ईएमएफ इज योर वाई इंटरसेप्ट, दैट इज 1.6. ईएमएफ पूछा नहीं हुआ तो हमने बताया नहीं है, बट बता भी सकते हो ईएमएफ इज इक्वल टू 1.6. Which list only fundamental particles? A तो नहीं हो सकता because neutrons and electrons are not fundamental particles. Electrons is also not fundamental particle. B भी नहीं होगा. Proton is also not fundamental particles. D is correct. Quarks, positrons, neutrino, leptons all are fundamental particles. Which statement explains why alpha particles have discrete energies but beta particles have a continuous range of energies? Beta particles के पास continuous range of energies क्यों होती है? Beta particles have much smaller mass? No. Only alpha particle experience repulsion? No. Only beta, हाँ. Beta particles are emitted with another lepton that is known as either a antineutrino or a neutrino. Some energy is transferred to that other lepton. A hadron consists of antigogs that are all identical. ठीक है. What is a possible value in terms of elementary charge for the charge on the hadron? अच्छा जी. सर लेप्टॉन की क्या डेफिनेशन है? लेप्टॉन की क्या डेफिनेशन है? लेप्टॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, लेप्टॉन भी जो है आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो. ठीक है. जब भी आपका बीटा पार्टिकल इमिट होता है, आइदर बीटा नेगेटिव पार्टिकल हो या बीटा पॉजिटिव पार्टिकल हो. क्या तुम्हें याद है इसके साथ एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो इमिट हुआ करता था? कोई ना कोई एक और लेप्टॉन इसके साथ इमिट हुआ करता था. दैट मींस सम अमाउंट ऑफ सर कोई इनके नेग्लिजिबल मास होगा? हाँ, निग्लेजिबल हो सकता है. ठीक है. अच्छा, हेड्रॉन कंसिस्ट ऑफ एंटीगॉग्स. ठीक है. दैट आर आइडेंटिकल. सारे एंटीगॉग्स जो है वो आइडेंटिकल है. What is a possible value in terms of elementary charge E for the charge on the hadron? अच्छा, 1 1. Why? 1/3 हो सकता है सिर्फ. 1/3 हो सकता है. शाबाश. क्या लिखा हुआ है बेटा? A hadron consists of antigogs that are all identical. सारे के सारे एंटीगॉग्स क्या हैं? आइडेंटिकल हैं. What is a possible value in terms of elementary charge for the charge on hadron? P1 is your answer. All clear, easy peasy. बताओ. हाँ, आप मुझसे पूछ लो कोई भी एमसीक्यू अगर डिफिकल्ट था पूरे पेपर.